Good morning, dear students. Today we will learn how can we use between clause in MySQL. Okay, so the between operator defines the range of values. The range includes both lower and upper value in the range. Okay, so what is the use of between clause? It is used to define a range of value. By using a between clause we can select the range of value, and in range both the lower and the upper value is included. Okay, in Python we know that if we use the range function, how can the range function will work? It will include the starting value but it will not include the end value, but here both the start and end value will be included. Okay, now this is our example. This is the our table customer, and these are the entries of the customer table. Okay, so here I will quickly copy that command and I will paste it here. It will save your time. So here I am, what I am saying that I want to select name, address and age from, what is my table name, customer, where age between, I will include the 23, or you can say 25 to 32. Okay, so it will give the range of value which will start from 25 and end with 32. So here you can see that you will find the entry of 25 as well, you will find the entries of 32 as well. So both these, the starting and ending range will also include. Okay, so this is how we can use the between clause. Okay, now second is how can we use between clause in a list. So this is my command. I will copy that command also. I will copy it and I will paste it here. Okay, so I want to select star from the members. Member is not my table name, so I will change the table name to customers, where city, instead of city my column name is address in Delhi, Mumbai and here you can write MP. So it will show me all the values which are having address of Delhi, Mumbai and MP. Okay, so here you can see that it is showing only those value of Delhi, Mumbai and MP, because I have written star, so it is showing the all values. Okay, so this is the another use to select the range. One is from between and one is from using the list. Okay, so this is how we can use both this command. Now third is condition based on patterns. Okay, for this I have used the like clause. Now I will open my this slide, and here you can see the use of like. Okay, so the SQL like clause is used to compare a values of similar values. Wildcard operators, so there are two wildcard operators, one is percent and second is underscore. Okay, so percent is used to, okay, so here you can also see the like is used as a string matching operator. From here we can match the string for comparing string using patterns. uh, Patterns are described using two special wildcard character. First is percentage and second is underscore. Now how percent will work? Percent will match any substring, or underscore will match the single character. Okay, now if I go to my this PDF, here you can see that the example. Now this is my statement. If I write the query where salary like 200 and percent, so what
दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट, ये स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि ये क्या करेगा, हर वो वैल्यू फाइंड करेगा जो स्टार्ट किससे है, 200 से स्टार्ट है। ओके, नाउ अगर स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि मीन्स कि फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो कि स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यू हैं वो कितनी होंगी, 200 होंगी, उसके बाद कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बस स्टार्टिंग की जो 3 वैल्यू होंगी वो होंगी 200, और उसके बाद आपकी कोई भी वैल्यू और कितने भी वहां पर करेक्टर्स हो सकते हैं। इन सेकेंड क्लॉज के यहाँ पर जो बात करेंगे वेयर सैलरी लाइक स्टार 200 स्टार, तो यहाँ पर ये बात करेगा कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, एंडिंग में कुछ भी हो सकता है, पर इन बिटवीन क्या होना चाहिए, 200 होना ही चाहिए। अब जैसे मैं अगर किसी की बात करूं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर किसी स्टूडेंट का नेम क्या हो, आर से स्टार्ट हो या ए से स्टार्ट हो, ओके, सो बाकी बाद में कुछ भी हो लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट ये है। सेकेंड स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूं कि जो क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ भी हो और बीच में एंडिंग में कुछ भी हो, पर बीच में क्या होना चाहिए, ए और एम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम सिमिलर क्या होगा यहाँ पर कि स्टार्टिंग में कुछ भी हो, एंडिंग में कुछ भी हो, बीच में क्या होना चाहिए मेरा 200 होना चाहिए। यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अंडरस्कोर है एंड 00 है और फिर परसेंट लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्टिंग में एक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर एक फिलअप है तो आप सिर्फ एक वैल्यू का करेक्टर होगा, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड वैल्यू क्या होगी, उसकी 0 होगी, थर्ड वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उसके बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि मुझे वो स्टूडेंट का नाम लो, पहले के लिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लगा दिया, फिल, पहली वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेकंड वैल्यू ए, थर्ड वैल्यू एम, उसके बाद आपने परसेंटेज लगा लिया, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अगर अंडरस्कोर आता है तो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इट मींस कि 0 से पहले एक सिंगल वैल्यू के लिए स्पेस खाली है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन परसेंट का मीनिंग क्या है कि आगे कितनी भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि लाइक क्लॉज में कि पहली वैल्यू क्या है, 2 है, सेकंड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके बाद कितनी भी वैल्यू हो सकती है, फिर एक वैल्यू यहाँ पर मेरी ब्लैंक है, फिर यहाँ पर है। तो फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ 2, जो स्टार्ट होगी 2 से, एंड देयर आर एटलीस्ट 3 करेक्टर इन लेंथ, और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो होगा कि मिनिमम जो होनी चाहिए कि 3 करेक्टर होने चाहिए, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि मिनिमम 3 करेक्टर क्या होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके स्टार्टिंग में कितने भी करेक्टर हो लेकिन एंड कितना किससे होना चाहिए, वो 2 से होना चाहिए। और यहाँ पर ये वाला जो होता है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टार्टिंग में सिर्फ एक वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू 2 होगी, उसके बाद कितनी भी वैल्यू आ सकती है, बट जो एंडिंग वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और द लास्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 2 है, एंडिंग वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मेरे 5 अंडरस्कोर यहाँ पर यूज किए, 5 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पर मेरे जो बीच में कितने होंगे, 3 अंडरस्कोर होंगे, तो 5 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लाइक और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब इसको हम अपने एग्जाम्पल में देखेंगे। लेटर सपोज कि यहाँ पर जो है मैंने बनाया हुआ है एग्जाम्पल, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने कमांड को, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आई नो डेट कि जो स्टूडेंट का नेम है, मेरी टेबल का नेम है वो क्या है, ओके, पहले मैं इसको यहाँ ले आऊँ, CUSTOMERS, जो जो वेयर नेम क्या होना चाहिए, वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए से कोई नेम स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ले लूँ, आपको आर ले लिया, तो यहाँ पर आर से एक ही नेम स्टार्ट है, तो एक ही वैल्यू को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए, तो उसके बाद कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर रमेश की जो एंट्री है उसने फाइंड कर दी। सेकेंड जो है मैंने कॉपी कर लिया, मैं एक काम करता हूँ, पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल लगा लेता हूँ कमांड, सो डेट आप आइडेंटिफाई कर पाओ अच्छे से प्रॉपरली, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि वो आइडेंटिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ जो कि किससे एंड है, HNKIK, तो मैंने यहाँ पर के लिख दिया। तो स्टार्टिंग में कुछ भी हो बट एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, के होनी चाहिए, तो ये क्या सेलेक्ट करेगा, एक कॉस ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, एक ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, 2 एंट्री यहाँ पर शो होंगी।
select star from customers. ओके, where name equals to then k. तो यह दोनों एंट्रीज हो गई। तो स्टार्टिंग में कितने भी एंट्रीज हो फर्क नहीं पड़ता, एंडिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, k होनी चाहिए। थर्ड कमांड है 10, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो स्टूडेंट की जगह मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5, मैंने कितना अंडरस्कोर यूज करे, 5 अंडरस्कोर यूज करे हैं। ओके, पहले मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ और टेबल का नेम चेंज कर लेता हूँ। टेबल का नेम है CUSTOL। ओके, सो यहाँ पर क्या है, मैंने 5 अंडरस्कोर सेलेक्ट करे, इट मीन अंडरस्कोर सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 अंडरस्कोर क्या करेंगे, 5 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 कैरेक्टर्स के जो नेम है वो वहां पर शो हो जाएंगे। तो 5 कैरेक्टर्स के नेम यहाँ पर एक कोमल है, एक मफी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एंट्री यहाँ पर इसलिए शो कर दी। नेक्स्ट कमांड है, ये भी मैंने कॉपी कर ली। अब मैंने यहाँ पर लिख लिया कंट्रोल V। ओके, सो यहाँ पर टेबल का नेम जो होगा, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके कर दूं कि ये मैं इसको कर दूं G। ओके, और यहाँ पर टेबल का नेम चेंज करके ओके, सो यहाँ पर मुझे पता नहीं कितने अंडरस्कोर है, तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर क्या है वो G है, उसके बाद मैंने 1 2 3 अंडरस्कोर यहाँ पर मैंने लगा दिए। इट मीन्स 4 है, ये बता रहा है कि ये मुझे वो स्ट्रिंग वो दिखाओ जो कि क्या होनी चाहिए, जिसका जो नेम होना चाहिए वो 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, क्योंकि 3 अंडरस्कोर है और एक G है। तो टोटल कितने कैरेक्टर्स होंगे, 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो G होना चाहिए। जब इसको फाइंड करोगे तो ऐसा एक ही एंट्री है गीत, और उसको ये क्या कर लेगा, फाइंड आउट कर लेगा यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन यूज दैट कमांड। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक कमांड और आपको रन करके दिखा दूं, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया परसेंटेज देन मैंने यहाँ पर लिख दिया AM एंड परसेंटेज। तो यहाँ पर ये सर्च करेगा कि किसी के भी अगर स्ट्रिंग के बीच में AM है तो वो आपको शो कर देगा यहाँ पर। तो ऐसा सिर्फ एक ही के स्ट्रिंग में है। ठीक है, और अगर खाली मैं यहाँ पर M कर दूं, किसी भी स्ट्रिंग में के मिडिल में अगर M आ रहा है तो वो भी क्या करेगा, उसको फाइंड कर लेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर देखो M आना चाहिए कहीं भी, यहाँ पर M यहाँ पर आया है तो फाइंड कर लिया, यहाँ पर M आया फाइंड कर लिया, यहाँ पर स्टार्टिंग में भी M आया है उसको भी फाइंड कर दिया। मतलब कहीं भी किसी भी पोजीशन में उसको M मिल गया तो उसने क्या कर दिया, उसको फाइंड आउट कर दिया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज और अंडरस्कोर का यूज करके हम सर्च यूज करते हैं। अब हमारा सर्च बॉक्स भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वो भी सिमिलर इसी तरह से वर्क करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर किसी फोल्डर पे आ जाऊँ, प्रोजेक्ट्स पे आ जाऊँ, यहाँ पर अगर मैंने फाइंड कर दिया यहाँ पर DE अगर मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया तो देखिए, और सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी वैल्यू फाइंड कर रहा है, कहीं पर भी E आ रहा है, स्टार्टिंग में है, एंडिंग में है, कहीं पर भी है। तो ये जो सर्चिंग हो रही है यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, परसेंटेज E लगा हुआ है। ठीक है, तो E कहीं पर भी हो वो उसको सर्च करके यहाँ पर फाइंड कर रहा है। तो हमारे विंडोज में भी कुछ इसी टाइप से सर्चिंग होती है परसेंटेज की फॉर्म में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट सर्चिंग हमें करनी है तो यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं अंडरस्कोर E, या अंडरस्कोर E मैंने कर दिया यहाँ पर। तो आपकी ये जो सर्च होगी, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका इस तरह से सर्च करेगा। ठीक, so this is how we can search by using the percentage and underscore symbol। ठीक, और एट द एंड में इस चैप्टर का है यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। फिर ये आपका एक पार्ट इस चैप्टर का फिनिश हो जाएगा कि डिस्टिंक्ट जो कीवर्ड होता है वो क्या करता है कि आपकी जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है सिर्फ उनको क्या करेगा, ये शो करेगा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट मैंने क्या ले लिया, एज ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने CUSTOMER कस्टमर ले लिया, और यहाँ पर जो है मैंने डिस्टिंक्ट जो है मैंने एज से ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि अभी क्या एंट्री शो कर रहा है, ये एंट्री शो कर रहा है।
एक बार मैं आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल भी दिखा देता हूँ, सो दैट आप अपनी टेबल की एंट्री को आइडेंटिफाई कर पाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर मेरा जो एज है वो 27 यहाँ पर भी है, 27 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है। तो यहाँ पर जो एज है वो डुप्लीकेट है, बट यहाँ पर जो एज शो हो रही है उसमें दो दो एंट्री नहीं है। आप देखोगे 25 की एक ही एंट्री है, 27 की भी क्या है, एक ही एंट्री है। तो जो डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसको क्या कर दिया उन्होंने, हटा के इस वैल्यू को क्या किया हुआ है, यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।